Good afternoon, everybody. We are continuing with ionic equilibrium. Last class we did buffer solutions. I'll just revise what a buffer solution. A solution which resists drastic change in pH. Okay, upon addition of small amount of acid or base, or on dilution, or on long standing. Then I told you there are three types of buffer solution: acid buffer, basic buffer, and single salt buffer. Okay. Now, what are acid buffers? They are, how are they made? They are made with weak acid, but its salt should be with strong base. So mixture of these two act as a acid buffer. What are basic buffer? They are made up of weak base, but its salt should be with strong acid. So mixture of these two, any weak base and its salt with strong acid can act as a basic buffer. Okay. And single salt buffer is a single salt made up of weak acid and weak base. Now, how this buffer solution act? How they maintain pH less than 7, more than 7, or equal to 7. Okay. So we'll understand mechanism of buffer action. How buffer action or how buffer solution work. So first we'll study mechanism of acid buffer. Consider an acid buffer made up of weak acid, acetic acid, and its salt with stored sodium, that is sodium acetate, which is a strong electrolyte. Now acetic acid being weak dissociate partially. Sodium acetate being strong dissociates completely. Now here you can see that acetic acid and sodium acetate, when you combine, acetic acid concentration increases and therefore equilibrium shifts backward. Okay, and acetic acid will remain undissociated to a greater extent. So in a buffer solution, now we have, after mixing both, we'll have acetic acid, we'll have acetate ions, we'll have hydrogen ions, and we'll have sodium ions. ठीक है ना? तो ये दोनों को जब मिक्स किया तो अब ये मिक्सचर सोल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या क्या है? ये एसिडिक एसिड रहेगा क्योंकि रिएक्शन रिवर्स हुआ है, एसिटेट आयंस भी रहेंगे सोल्यूशन में, हाइड्रोजन आयंस और सोडियम आयंस. तो ये दोनों मिक्स करने के बाद हमारे पास अभी बफर सोल्यूशन में दिस फोर थिंग्स वी हैव. अभी एसिडिक एसिड को हम रिजर्व एसिड बुलाते हैं और एसिडेट आयंस को हम रिजर्व बेस बोलते हैं. ठीक है. अभी देखो, मैंने ये सोल्यूशन में ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड डाला. अगर ये बफर सोल्यूशन में मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड डालता हूं तो पीएच का क्या होगा? पीएच बढ़ेगा कि कम होगा? ये बफर सोल्यूशन में मैंने थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे कि थोड़ा सा HCl डाल दिया. ओके, तो पीएच क्या होगा? पीएच बढ़ेगा कि पीएच कम हो जाएगा? जैसे HCl डालोगे हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा. हाँ, सो पीएच विल डिक्रीज, है ना? बिकॉज व्हेन यू ऐड एसिड पीएच शुड बी लेस देन 7. हाँ, सो पीएच लोअर हो जाएगा. ठीक है. सो ध्यान दो, as the concentration of hydrogen ions increases, pH of solution should change, but here the pH will not change. Why? Here the pH, अगर तुमने समझो ये दोनों का बफर सोल्यूशन बनाया, यहाँ पे जितने हाइड्रोजन है, समझो ये सोल्यूशन का pH है 4. अभी जैसे तुमने HCl डाला तो pH लेस देन 4 हो जाना चाहिए और कम होना चाहिए, पर pH चेंज नहीं होगा. ओके, क्यों नहीं होगा? तो ये जो रिजर्व बेस है ना, एसिडेट आयंस, वो हाइड्रोजन के साथ इमीडिएटली कंबाइन हो जाते हैं और अनडिसोसिएटेड एसिडिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो हाइड्रोजन आयंस को न्यूट्रलाइज कर दिया और इसलिए पीएच अनचेंज्ड रहेगा, 4 का 4 ही रहेगा. ठीक है. ऐसे ही अभी मैं इसके अंदर समझो वही सोल्यूशन में थोड़ा सा बेस डाल देता हूं, NaOH, तो फिर क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयंस इंक्रीज होगा, pH should change, but it does not change. Why it does not change? क्योंकि यहाँ पे जो एसिडिक एसिड है ना, वो रिजर्व एसिड है. तो ये एसिडिक एसिड OH आयंस के साथ एसिटेट आयंस और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. तो यहाँ पे OH डालने के बाद या H डालने के बाद pH will remain unchanged. Is it clear? Everybody is getting what I am saying, and this is how the buffer solution work. अगर समझो मैंने कोई भी खाना है, फूड है, उसके अंदर है ना एसिडिक एसिड और सोडियम एसिडेट का बफर डाल दिया. अभी हमको मालूम है कि वो खाना डिग्रेडेड होगा, डिकम्पोज होगा, तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होते जाएगा?
एसिड प्रोड्यूस होते जाएगा और हाइड्रोजन आयंस बढ़ते जाएंगे। पीएच चेंज होना चाहिए, पर पीएच चेंज नहीं होता है खाने का, पीएच उतना ही रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने बफर डाला है ना उसके अंदर, तो इसके अंदर जो एसिडेड आयंस है वो हाइड्रोजन आयंस को निकालते जाएंगे और एसिडिक एसिड में कन्वर्ट होते जाएगा, ठीक है ना, और इसलिए पीएच चेंज नहीं होगा। ओके, और ये कब तक चलेगा, क्योंकि इसके अंदर हमने ये बफर सोल्यूशन का मिक्सचर डाला है। आई हैव एडेड टू अ सर्टेन लिमिट 1 ग्राम 2 ग्राम, ऐसा मतलब समझो 100 ग्राम फूड है तो मैंने 1 ग्राम या 2 ग्राम बफर डाला है, तो जितने एसिडेड आयंस होंगे उसके अंदर वो हाइड्रोजन आयंस को न्यूट्रलाइज करते जाएंगे और वो उसको एसिडिक एसिड में कन्वर्ट करते जाएंगे, तब तक चलेगा। पर जैसे ही ये एसिडेड आयंस खत्म हो जाएंगे और अभी अभी और अगर एसिड प्रोड्यूस हुआ तो खाना खराब हो जाएगा। और ये सबका टाइमिंग रहता है कि फूड डिकम्पोज होने के लिए कितना टाइम लेगा, तो 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटा 15 घंटा वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, और उतने घंटे तक ये फूड प्रिजर्व रहेगा। फिर उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट मार्क हो जाती है कि इतने घंटे के बाद अब ये फूड खराब हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो दैट इज हाउ दिस होल मैकेनिज्म वर्क। सो ऑल देयर आर कैलकुलेशंस and time and everything is calculated, and then we put expiry date accordingly. Any difficulty? सबको समझा? फिर से एक बार पूरा मैकेनिज्म समझा दो कैसे लिखना है एग्जाम में। हम लोग बोलेंगे कंसीडर एन एसिड बफर सोल्यूशन मेड अप ऑफ एसिडिक एसिड एंड सोडियम एसिडेट. Acetic acid being weak dissociates partially. Sodium acetate being strong dissociate completely. Now in buffer solution we have acetic acid, acetate ions, hydrogen ions and sodium ions. We have this all four things. Okay, now say to this solution, ये buffer solution का जो mixture है, add small amount of strong acid. Okay, so what will happen? The concentration of hydrogen ion will increase and pH should change, but here the pH will not change. Okay, why it will not change? Because acetate ions neutralizes hydrogen ions to form undissociated acetic acid. Similarly, if you add small quantity of base, okay, to the buffer solution, the OH ions will increase and pH should change, but here it will not change. Why? Because OH ions are neutralized by reserve acid, that is acetic acid, to form acetate ions and water. thus हमने हाइड्रोजन आयंस भी न्यूट्रलाइज कर दिए, OH आयंस भी न्यूट्रलाइज कर दिए, तो उसके अंदर अगर तुमने एसिड डाला या बेस डाला पर पीएच चेंज नहीं होगा। इज इट क्लियर? एंड दैट इज हाउ द बफर सोल्यूशन वर्क्स, कि बफर के अंदर एक रिजर्व एसिड भी होता है और एक रिजर्व बेस भी होता है और वो पीएच मेंटेन करते जाता है। ठीक है, सबको समझा ये? एनीबॉडी हैव एनी डाउट हियर? Okay, chalo now we'll, how does acidity or basicity increases? आयशा, अगर हमने ना, I did not get you. We want to maintain acidity and basicity. Why we want to increase? Like what factor? अच्छा, what factor means अगर हाइड्रोजन आयंस बढ़ाओगे तो एसिडिटी बढ़ेगी और पीएच लो हो जाएगा, बेस डालोगे तो OH आयंस बढ़ेंगे तो पीएच बढ़ जाएगा और बेसिसिटी इंक्रीज होगी। सो एसिड और बेसिसिटी डिपेंड्स प्योरली ऑन H आयंस एंड OH आयंस। इज इट क्लियर? नहीं, यहाँ पे हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वी आर नॉट एडिंग इट। एक एक्सपेरिमेंट किया मैंने कि मैंने एसिड, ये बफर सोल्यूशन लिया, ओके आयशा समझो क्या हो रहा है। मैंने एसिडिक एसिड और सोडियम एसिडेट का बफर बनाया, अभी मैंने इसका पीएच चेक किया, इसका पीएच आया 4। अगर मैंने उसके अंदर थोड़ा सा HCl डाला और फिर पीएच चेक किया तो फिर से पीएच 4 आया। मैंने उसके अंदर थोड़ा बेस डाला, पीएच चेक किया
तो पीएच फिर से 4 आया, मतलब उसमें एसिड डालो या बेस डालो पीएच चेंज नहीं हो रहा है। अभी मैंने तुमको उसके बाद एग्जांपल भी दिया कि अगर मैंने ये सेम बफर मैंने खाने के अंदर डाला होता, तो खाने के अंदर तो मैं एसिड डाल नहीं रहा हूँ, ये तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, इसलिए तुमको दिखाने के लिए मैंने ऐड किया। अभी खाने के अंदर तो एसिड खुद से प्रोड्यूस हो रहा है, या इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू शो कि अगर तुमने एसिड डाला, तुमने बेस डाला, तो पीएच फिर भी अनचेंज्ड हो रहा है। पर ऐसा हम प्रैक्टिकल में नहीं करते। प्रैक्टिकल में क्या होता है, समझो खाना है, फूड है, उसके अंदर मैंने ये एसिड बफर डाल दिया, अभी खाने के अंदर तो खुद से एसिड प्रोड्यूस होगा, तो H प्लस आयंस इंक्रीज होंगे, ठीक है, तो पीएच चेंज होना चाहिए, पर वहां पे पीएच चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बफर सोल्यूशन उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। अभी ऑब्वियसली खाने के अंदर OH आयंस नहीं प्रोड्यूस होंगे, तो OH का कोई रोल ही नहीं है, खाली H का रोल रहेगा वहां पर ऐसा कोई बफर है जो जिसमें OH आयंस बढ़ रहे हैं, ऐसा कोई सोल्यूशन है जहाँ पे बेसिक है OH आयंस बढ़ रहे हैं और मुझे OH को न्यूट्रलाइज करना है, तो भी मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है ना? यू गॉट इट व्हाट आई एक्सप्लेन? ओके, अभी ऐसे ही बेसिक बफर सोल्यूशन कैसे काम करता है, सेम वे विल अंडरस्टैंड मैकेनिज्म ऑफ बेसिक बफर। देखो ना, बेसिक बफर इज मेड अप ऑफ ammonium hydroxide and ammonium chloride. Now ammonium hydroxide is a weak base, therefore it will dissociate partially. Ammonium chloride is a strong base, therefore it will dissociate completely. Now in buffer solution what all we'll have? We'll have ammonium hydroxide, क्योंकि reverse reaction है तो ammonium hydroxide रहेगा, फिर ये ammonium ions रहेंगे, ये OH ions रहेंगे और ये chlorine रहेगा। ये नहीं रहेगा, ammonium chloride नहीं रहेगा क्योंकि ये पूरा का पूरा dissociate हो चुका है, ठीक है? तो ये चार चीज हमारे पास अभी बफर सोल्यूशन में है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम रिजर्व बेस बुलाते हैं और अमोनियम आयंस को हम रिजर्व एसिड बोलते हैं, ओके? अभी समझो इसी सोल्यूशन के अंदर मैंने एक थोड़ा सा एसिड डाला, ओके? तो पीए यहाँ पे क्या होगा, जैसे एसिड डालोगे हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, पीएच चेंज होना चाहिए, पर पीएच चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक रिजर्व बेस है इसके अंदर, तो ये हाइड्रोजन आयंस को न्यूट्रलाइज कर देगा अमोनियम आयंस और वाटर में, मतलब हाइड्रोजन आयंस निकल गए तो पीएच चेंज नहीं हुआ। ऐसे ही मैंने थोड़ा सा बेस डाल दिया, ओके, तो OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया और पीएच चेंज होना चाहिए, पर पीएच चेंज नहीं होता है। क्यों चेंज नहीं होता है? क्योंकि OH आयंस आर न्यूट्रलाइज्ड बाय अमोनियम आयन व्हिच इज अ रिजर्व एसिड, और ये दोनों कंबाइन होके अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो OH आयंस भी निकल गए and thus the pH remains unchanged. Is it clear? Everybody followed mechanism of acid and basic buffer both? Any doubt? Any difficulty? Okay. हाँ, ammonia is base. Yeah. Yeah, Zen. Zen, any doubt? Okay. चलो अभी नेक्स्ट करते हैं, relation between pH and acid buffer solution. For pH of an acid buffer solution, यहाँ पे क्वेश्चन आता है derive and Henderson's equation for acid buffer solution. दो छोटे छोटे डेरिवेशन करने हैं, एक एसिड बफर के लिए और एक बेसिक बफर के लिए, ठीक है? तो हेंडरसन्स इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे। कंसिडर एन एसिड बफर सोल्यूशन मेड अप ऑफ वीक एसिड HA एंड इट्स सॉल्ट BA। मैंने बोला ना इन जनरल हम लोग को सॉल्ट और एसिड ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे एक सॉल्ट है BA, डिसोसिएट कंप्लीटली, बट एसिड डिसोसिएट्स पार्शियली। अब ये पार्शियली है इसलिए हम इसको लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे, तो इसको जब लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करोगे तो हमको मिल जाएगा K इज H प्लस A माइनस अपॉन HA, ये कैपिटल होना चाहिए, हाँ, बाय मिस्टेक। अभी है ना, ये H प्लस के फॉर्म में लिखोगे तो K इंटू HA अपॉन A माइनस ऐसे आ जाएगा। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड HA इज नियर, क्योंकि एसिड वीक है तो इट डिसोसिएट टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट, तो एसिड का जो
यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, ओके, इट विल बी सेम एज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ओके, एंड जो सॉल्ट है is equal to initial concentration of salt, it is completely dissociated. अगर मैंने 1 मोल सॉल्ट दिया तो ए आयोन्स भी 1 मोल होंगे क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ है, ठीक है ना। तो इसीलिए अभी हम यहाँ पे ये एच की जगह पे एसिड का कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे और ए आयंस की जगह पे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे. सो यू विल गेट एसिड अपॉन सॉल्ट. नाउ टेक नेगेटिव लॉगरिथम ऑन बोथ द साइड्स. अब इन सबका नेगेटिव लॉगरिथम ले लो. तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच आयंस, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के माइनस नेगेटिव लॉग ऑफ दिस रेशियो, ठीक है. नाउ व्हाट इज नेगेटिव लॉग ऑफ एच आयंस? व्हाट इज दिस? नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन इज व्हाट? या करेक्ट. नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन को हम क्या बुलाएंगे? आयशा एंड जेन, करेक्ट. व्हाट अबाउट अदर्स? इंटरेक्ट ही नहीं करते. ओम, सिद्धार्थ, दिया, ऋषभ, हाँ अमृता, करेक्ट. ओके, so negative log of H ion is pH and negative log of Ka, negative log of K को क्या बुलाओगे? pK, ठीक है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेगेटिव लॉग ऑफ H ion is pH, नेगेटिव लॉग ऑफ K माइनस नेगेटिव लॉग ऑफ K is pK. अब ये माइनस को अगर मैंने प्लस कर दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा? अगर लॉग में माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं? हाँ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करते हैं, इनवर्स, जेन, उल्टा कर देने का. तो सॉल्ट अपॉन एसिड हो जाएगा रेसिप्रोकल करोगे तो. वेरी गुड शिफा. ओके, नेगेटिव में जब भी नेगेटिव साइन होती है और लॉग वैल्यूज होती है तो रेसिप्रोकल कर दो तो माइनस विल बिकम प्लस. और ये रिएक्शन, ये इक्वेशन को हम बोलते हैं हेंडरसन्स इक्वेशन. हेंडरसन्स हेस्पेल्स इक्वेशन फॉर पीएच ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन. चलो एक बार ये पूरा डेरिवेशन लिखो. Come on, write down this derivation once.
चलो डन, लिखा। ओके चलो अभी सेम एक बेसिक बफर के लिए करते हैं, मैकेनिज्म फॉर बेसिक बफर। ओके now see here, pH of an basic buffer solution। अभी कंसिडर, हाँ बेसिक बफर होना चाहिए था, हाँ कंसिडर अ बेसिक बफर सोल्यूशन, ओके एंड इट्स सॉल्ट। अभी सॉल्ट डिसोसिएट कंप्लीटली होगा और बेस जो होगा वो डिसोसिएट पार्शियली होगा। नाउ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ BOH इज गिवन बाय KB इज इक्वल टू B प्लस OH एंड BOH, ठीक है। अभी फिर से OH के फॉर्म में लिखोगे तो KB इंटू BOH अपॉन B प्लस आएगा। ना इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH is nearly equal to initial concentration because base is weak, तो इनिशियली BOH का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वही इक्विलिब्रियम के वक्त रहेगा because it dissociate to a very small extent। जैसे बोलते ना 100% लो पर खाली 99, खाली 1% आयोनाइज हुआ और 99 रह गया, सो 99 इज सेम एज 100 ओनली। तो इसलिए BOH का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल के बराबर ले लेते हैं। और सॉल्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ तो अगर सॉल्ट 1 मोल है तो B प्लस B 1 मोल ही रहेगा। सो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन और B प्लस का कॉन्सेंट्रेशन सेम है और इसीलिए हमने BOH की जगह पे बेस का कॉन्सेंट्रेशन और B प्लस की जगह पे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ऐसे लिखा। अभी टेक नेगेटिव लॉग ऑन बोथ द साइड, ठीक है। तो नेगेटिव लॉग ऑफ OH आयोन्स इज POH एंड नेगेटिव लॉग ऑफ KB इज PKB। फिर से ये माइनस को प्लस करना है तो हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये सॉल्ट अपॉन बेस हो जाएगा। पर अभी ये जो रिलेशन मिला है वो POH के लिए मिला है और हमारा है pH फाइंड करना रिलेशन के लिए, ओके। तो अभी POH मिला, अभी pH के लिए हम क्या करेंगे, pH प्लस POH इक्वल्स टू 14 या तो pKw, क्योंकि KW की वैल्यू होती है 10⁻⁻14, तो हमने इसके लिए इसको pKw लिखा। तो pH इक्वल्स टू pKw माइनस POH, ओके। सो pH इक्वल्स टू pKw, ये POH का पूरा रिलेशन यहाँ पे डाल दिया। अभी pKw इज नथिंग बट 14 है ना, सो वी कैन राइट pH इक्वल्स टू 14 माइनस दिस, ओके। pH इक्वल्स टू 14 माइनस pKb प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। तो ये pH के लिए हो गया बेसिक बफर। इज इट क्लियर? तो ये थोड़ा एडिशनल करना है बेसिक बफर के लिए pH फाइंड करने के लिए, और POH बोला तो वहीं तक करना है, pH बोला तो यहां तक करना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक बार अब ये फटाक से लिख दो फिर हम लोग आगे करते हैं।